अगर कोई छोटा सा मुजरिम जुर्म करता है तो उसको जो कत्ल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको मौका दिया जाता है कि अपने जुर्म की इस्लाह कर ले। अपने जुर्म की इस्लाह करते हुए एक अच्छे शहरी बनने की कोशिश करे। हुकूमत साथ देता है। अगर है तो जो है उसको दुरुस्त कर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। अगर कोई छोटा सा मुजरिम जुर्म करता है तो उसको जो कत्ल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको मौका दिया जाता है कि अपने जुर्म की इस्लाह कर ले। अपने जुर्म की इस्लाह करते हुए एक अच्छे शहरी बनने की कोशिश करे। हुकूमत साथ देता है। अगर है तो जो है उसको दुरुस्त कर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। अगर कोई छोटा सा मुजरिम जुर्म करता है तो उसको जो कत्ल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको मौका दिया जाता है कि अपने जुर्म की इस्लाह कर ले। अपने जुर्म की इस्लाह करते हुए एक अच्छे शहरी बनने की कोशिश करे। हुकूमत साथ देता है। अगर है तो जो है उसको दुरुस्त कर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। अगर कोई छोटा सा मुजरिम जुर्म करता है तो उसको जो कत्ल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको मौका दिया जाता है कि अपने जुर्म की इस्लाह कर ले। अपने जुर्म की इस्लाह करते हुए एक अच्छे शहरी बनने की कोशिश करे। हुकूमत साथ देता है।
छोटा सा मुजरिम जुर्म करता है तो उसको जो कत्ल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको मौका दिया जाता है कि अपने जुर्म की इस्लाह कर ले। अपने जुर्म की इस्लाह करते हुए एक अच्छे शहरी बनने की कोशिश करे। हुकूमत साथ देता है। वापस लो 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 वापस लो। सब लोग यहीं ठहर जाओ और जो मुंतखब लोग यहाँ जाएंगे और हमारे साहब को मेमोरेंडम देंगे। भाई पीछे जाओ पीछे जाओ। आप सबकी तरफ से मेमोरेंडम दिया जा रहा है, आप खामोश खामोश रह जाए। चलो ఈ రోజు వక్ఫ్ చట్టానికి ఏదైతే వ్యతిరేకంగా ప్రదర్శన జరుగుతుందో దీనికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున సంపూర్ణ మద్దతు తెలపడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే కుల మతాలకు అతీతంగా భారతదేశం ఎదిగింది. భారతదేశ అభివృద్ధిలో కూడా ముస్లిం మైనార్టీలు అనేది ఎంతో కీలకము. నిజంగా ఏదైతే కంగనా జమునా తహసీల్ అని చెప్తారో దానికి అనుగుణంగానే ఏదైనా బిల్లు తెస్తే బాగుంటది, కానీ ఇలా ఒకరికి వ్యతిరేకంగా బిల్లు తెచ్చడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. మేమైతే కలిసికట్టుగా ముస్లింలు హిందువులు కలిసికట్టుగా ఉండాలని అని చెప్పి ఆశిస్తున్నాము. ఈ బిల్లుకి ఏదైతే వ్యతిరేకంగా ర్యాలీ తీస్తున్నారో దానికి సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలుపుతున్నాం. ప్రజలు కూడా అంటే తెలంగాణనే కాదు యావత్ భారతదేశం కూడా ఈ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తుంది. కాబట్టి ప్రజలు కుల మతాలకు అతీతంగా మనం కూడా సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించాలి. ఈ బిల్లు వాపస్ తీసుకునే వరకు మీ వెంట మేము ఉంటామని చెప్పి మరొక్కసారి మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. మీరు ఏం సందర్భంలో ఎక్కడ ఏ ధర్నా చేసినా మా పార్టీ సహకారం ఉంటుంది. మేము కూడా మా అందరి భాగస్వామ్యం ఉంటుంది. మేము ఖచ్చితంగా మీ వెనుకనే ఉంటాం. మీ హక్కులను కాపాడడానికి మేమే ముందుంటాం. దాంట్లో మీరు ఏ కార్యక్రమానికి పిలిచినా ఇక్కడికి రమ్మన్నా మా పార్టీ తరఫున మేమందరం హాజరవుతాం. కాబట్టి ఈరోజు చక్కటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు షాద్నగర్లో. ఎందుకంటే ఒక మతాన్ని కించపరుచుకుంటూ ఇలా కొన్ని చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. దానికి అనుగుణంగా వీళ్ళు ఏదైతే వ్యతిరేకంగా ర్యాలీ తీస్తారో దానికి సంపూర్ణ మద్దతు షాద్నగర్ ప్రజల తరఫున చూడంగా ఉంటుందని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మత పెద్దలందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. బిల్లు పార్లమెంట్ లో తీసుకొస్తే ఇవాళ పార్లమెంట్ లో కూడా ఈ భారతదేశంలో ఒక సెక్యులర్ కంట్రీలో ఇటువంటి వక్ఫ్ బిల్ తేవడం చాలా అన్యాయం. భారతదేశంలో ఉండే ప్రతి ముస్లిం సోదరులకు ఇది వ్యతిరేకతగా ఉంది, ఇది నల్ల చట్టంగా ఉంది అని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ వక్ఫ్ బిల్లును వ్యతిరేకించడం జరిగింది. ఇవాళ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క నిరసనలకు మేమెవరికో వ్యతిరేకం కాదు. ముస్లిం సోదరులు ఒక ప్రశాంతంగా వాళ్ళ నిరసన వాళ్ళు వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు.
ఇవాళ భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న వెసులుబాటును మాకు కల్పించాల్సిందిగా వాళ్ళు నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ అన్ని పార్టీలు కూడా ఒక బీజేపీ పార్టీ తప్ప అందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో ఇలా ముస్లిం సోదరులకు అండగా నిలబడాల్సిన సమయం వచ్చింది. కాబట్టి ఎందుకంటే భారత స్వతంత్రోద్యమంలో కూడా ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదరులు కానీ సిక్కు సోదరులు కానీ క్రిస్టియన్ సోదరులు కానీ అందరం పాల్గొని ఈ భారతదేశానికి అఖండ భారతదేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చుకున్న తర్వాత మనం భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మాణం చేసుకున్నాం. ఇలా అంబేద్కర్ సాక్షిగా మేము నిరసన అంటే మా హక్కు మా జీవితానికి మాకు మా భావి తరాలకు ముస్లిం సోదరులకు ఒక అన్యాయం తెచ్చిన ఈ బిల్లును వెంట తీసుకోవాల్సిందిగా ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిరసన వ్యక్తం చేస్తారు. కాబట్టి ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ రోజు కూడా ఈ యొక్క ముస్లిం సోదరుల మత పెద్దల సమక్షంలో ముస్లిం సోదరులందరూ ఇలా సోదరులందరూ కూడా ప్రతి ముస్లిం సోదరుడు మహిళా సోదరులు కూడా ఇందులో పాల్గొనడం అంటే ఇవాళ సిగ్గు తెచ్చుకోవాలి. ఈ ప్రభుత్వాలు నిజంగా కూడా చెప్తా ఉండంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా ఒక డిక్టేటర్ పాలనలో ఉన్నామా? మనం అందరం కూడా కలిసి సాధ్యం చేయడానికి మేమెప్పుడు ముస్లిం సోదరులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటది. మా ప్రతిపక్ష నేత ఆ రోజు కూడా మేమందరం కూడా ఢిల్లీకి పోవడం జరిగింది. ప్రతిపక్ష నేత ఆ రోజు బిల్లు మీద మాట్లాడడం జరిగింది. కాబట్టి అక్కడ కూడా ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు మైనార్టీలకు అండగా ఉండే పార్టీ. కాబట్టి ఇవాళ నేను కూడా ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఈ యొక్క నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ బిల్లు ఒక వాపస్ అంటే మా అందరి డిమాండ్ ఈ బిల్లు వాపస్ తీసుకోవాలి, ఒక బిల్లుని వాపస్ తీసుకోవాలనేదే మా యొక్క డిమాండ్. आओ जानी आ जाओ ए जानी तुम सामने आओ बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाद नमाज जुमा जामे मस्जिद पटेल रोड से नौजवान मुसलमानों ने शादनगर और फर्रुख नगर और क़ाज़ी सैयद मुख्तदर अली साहब सदर क़ाज़ी साहब की अपील पर अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन बहुत बड़ी एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करते हुए एमआरओ ऑफिस को पहुंची और एमआरओ साहब को हमारे जज्बात और एहसासात से वाकिफ़ करा गया और उनको मेमोरेंडम दिया गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये जो परसों क़ानून बना है वक्फ़ बिल जो पास हुआ है और सदर जमहूरिया का दस्तखत भी हो गए हैं तो ये क़ानून बन चुका है। ये क़ानून को वापस लेने के लिए जिस तरह शाहबानो केस में तहरीक चलाई गई थी मुस्लिम बरसल्ला बोर्ड इसी नहज पर इंशाअल्लाह 90 दिनों का जो प्रोग्राम बनाया गया है 90 दिनों में इसके बाद और जब भी जो है हमारे कॉल होगी क्या करना है तो हम आपके दरमियान में आएंगे, आपको कॉल करेंगे। संविधान ने जो हमें मौका दिया है संविधान के मुताबिक जो है हम अमल करते हुए हम अपने हुकूक की लड़ाई को जारी रखेंगे। 24, 25, 26 में ये हमें राइट्स दिए गए हैं कि हर आदमी हिंदुस्तान का हर शहरी अपने अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल कर सकता है। लेकिन जो हमारे पुरुष और बड़े जो ज़मीनात वक्फ किए थे वो वक्फ एक मरतबा हो गया तो इस्लामी हिसाब से वो अल्लाह की मिल्कियत हो गई, ना उसका कोई मुतवली हो सकता है ना किराएदार के उसके हुकूक हासिल होते हैं। वो किराएदार ही रहेगा चाहे कितने भी साल हो। तो लिहाजा वो क़ानून को ख़त्म करते हुए वो अब हुकूमत अब एक नया क़ानून लाई है जिसके तहत जो हमारे वक्फ में दो गैर मुस्लिम होंगे औरतें भी होंगे और इसके साथ साथ जो है कलेक्टर को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। कलेक्टर जो लिख देगा ये अगर कहेगा कि जो है ये एक सरकारी ज़मीन है तो हमको खाली कर देना पड़ेगा और हमको हिरासा किया जाएगा। ना उस वक्त में ना हमारी मस्जिदें बच सकती हैं, ना क़ब्रिस्तान बच सकते हैं, ना आशुर खाने बच सकते हैं, ना ईदगाह बच सकती है और ना जो है जितने वक्फ के प्रॉपर्टियाँ हैं ये बच नहीं सकते। लिहाजा हमारे अकाबिरीन ने जो आवाज़ मुल्क गिर तौर पर जो आवाज़ उठाई है आज हिंदुस्तान की कोने कोने में ये एहतजाजी रैलियां निकाल कर हुकूमत के ऐवानों तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, बराबर के हकदार हैं, हम दूसरे नंबर के शहरी नहीं हैं। ये जो बात आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये रैली इख्तिताम को पहुंची। मैं महकमे पुलिस और हमारे
जितने भी यहाँ पर काबिरीन, यहाँ जितने सियासी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, ख़ासतौर पे MLA साहब, MLC साहब जो है, नवीन रेड्डी साहब, इन सब का जो है शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अइम्मा उलमाए कराम का सबका मशकूर हूँ जिन्होंने इस रैली में हिस्सा लिया। सबसे अहम तरीके से मस्जिदें और मदरसे अल्लाह की ज़मीन होती हैं। वफ़ की जो इमलाक है, वफ़ की जो जायदाद है, वो भी एक अल्लाह की अमानत है। इसके अंदर किसी का कोई जो है इख्तियार नहीं होता है। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि पार्लिमानी हुकूमत से कि वो अपने वक्फ बिल को वापस लें। दूसरी बात ये है कि मैं रियासती हुकूमत तेलंगाना की वक्फ बोर्ड से गुजारिश करता हूँ कि जो ज़मीनें 2180 एकड़ ये इसकी जो है जितने पेपर्स थे वो गायब हो चुके हैं, और फिर रियासती वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारी धांधलियाँ हैं। और मैं मोहतरम जनाब जो चेयरमैन साहब है उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इसके तरफ नज़रसानी करें, और शादनगर के अतराफ व अकनाफ में जो वक्फ बोर्ड है इंशाल्लाह उसकी भी जो है ना हिफाजत। तमाम मुसलमानों से रियासती हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि वो इस वक्फ अमिटमेंट के खिलाफ तहरीक चलाएँ। हर मुद्दे पर जो है हुकूमत हमें तकलीफ दे रही है। जब से ये हुकूमत आई है कि ये अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन के बजाय हमें तकलीफ ही तकलीफ हो रही है। कभी तो ये तिरुल तलाक, कभी तो CA, कभी NRC, अभी जो है वक्फ अमिट बिल के खिलाफ जो है ये तहरीक चल रही है। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ कि इस तहरीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले, और हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि वो इस बिल को वापस ले। अस्सलाम वालेकुम। शादनगर में आए हैं उन सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बिल में जो है वो कलेक्टर को ये दिया गया है, और ये कलेक्टर इस बिल को अमेंडमेंट कर सकते हैं। इस बिल को तो ये बिल राष्ट्रपति के जरिए से ये कानून बन गया है। लिहाजा हम इस तेलंगाना गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब को ये बोल रहे हैं कि जैसे ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए असेंबली में एक तीर्मानम प्रवेश कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ के MLAs और MPs और सभी को हम लोग ये शादनगर गड्ढे से बोल रहे हैं कि असेंबली में इसके कानून के खिलाफ आप असेंबली में तीर्मानम करो। ये अगर तीर्मान करने से, इसको रिजोल्यूशन पास करने से इस बिल को तेलंगाना में रोक सकते हैं। शुक्रिया आप सभी को। आज शादनगर शहर में जो है माशाल्लाह हज़ारों में जो है लोग निकले, नौजवान निकले, सेकुलर जमात के कायदीन निकले और उलमा इकराम निकले। और बहुत ज़रूरी है आज के दौर में जो है अपना हक़ लेना पड़ता, हक़ दिया नहीं जाता, और उसके लिए जान और माल और जो है वक्त की कुर्बानी करना पड़ता। और घर में रहने वालों को मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ी चूड़ियाँ खरीद लो, एक साड़ी पहन लो, क्योंकि आज अपने कब्रिस्तान भी महफूज नहीं है, अपने मस्जिदें महफूज नहीं है। तो आज नहीं निकलेंगे तो आपको आने वाले जो है जनरेशन माफ़ नहीं करेंगे। और ये चीज़ सोचना चाहिए कि अपना फ़र्ज़ है, अपना हक़ है, हक़ अगर लेना अपना फ़र्ज़ है। और कब तक जो है जुल्म कर रहे, अपन मजलूम बन के जी रहे। और कभी भी कोई अगर कोई कॉल दे रहे तो इमीडिएट आना चाहिए, डिसिप्लिन से अखलाकी दायरे में रह के अपना जो है एहतजाज करना चाहिए। और अपने मसलकों के झगड़े बाजू रखिए, पॉलिटिकल पार्टियों के झगड़े बाजू रखिए, रख के जो है कैसा प्रोग्राम सक्सेस होता है वो देखिए। ये मेरी अपील हमेशा थी शादनगर के लिए, नहीं पूरे स्टेट के लिए। एक प्लेटफॉर्म पे आइए और डेढ़ की मस्जिद मत बनाइए, और अपना चलना, अपना नाम होना, ये सब चीज़ बाजू रख के जो है कौम का फ़ायदा होना, इंसानियत का फ़ायदा होना। शादनगर जो है शादनगर जो है इंडिया के अंदर, पर देश के अंदर जो है शादनगर की तारीख में लिखे जाना के शादनगर के मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक इंसानियत का जो है जब भी पैगाम देते हैं तो इमीडिएट जो है आते। तो बहरहाल सब जो भी लोग आए उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और वैसे इसी तरीके से अपने तेलंगाना के जो है असेंबली में कांग्रेस की हुकूमत है, पार्लियामेंट में जो है राहुल गांधी साहब अपोजिशन में जो है इसके लिए फाइट कर रहे हैं, ये सब मालूम है। तो लिहाजा यहाँ के CM साहब भी जो है उन्होंने जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करके जो है इस बिल को जो है अपने तेलंगाना में अमल नहीं करते, बल्कि जो है ना प्रॉमिस करना है, ये हमारा डिमांड है। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह शादनगर फ़र्रुखनगर में एक अज़ीमुश्शान एहतिजाजी रैली मुनक़िद की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह शादनगर के अंदर तमाम अइम्मा और तमाम सियासी कायदीन
और हमारे समाजी लोग यहाँ पर एकजुट होते हुए इत्तेहाद के मुजाहरे के साथ जमा हुए और ये रैली पटेल रोड जामा मस्जिद से निकलकर एमआरओ ऑफिस तक पहुंची और हमारी दरख्वास्त, हमारा जो मुतालबा था वो यहाँ पर दिए हैं हम। और ये जो बिल हमारे लिए लाया गया है तरमील बिल, हम चाहते हैं कि हमारे दिलों को तकलीफ ना दे। और मुसलमान वो होता है जो मुसलमान सबसे पहले हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर कोई आया है तो सबसे पहले मुसलमान अपने खूनों की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान के परचम को बुलंद किया और उसी मुसलमान को ये दबा रहे हैं। और ये उनकी कोशिशें हैं कि मुसलमानों को उनके हकूक से मिटा दिया जाएगा, उनको तकलीफ दे दी जाएगी। तो खुदा की कसम मुसलमान कभी तकलीफ नहीं देगा, सब्र के साथ इस्तेकामत के साथ अपने हुकूक को लड़ कर लेने का जानता है। और हिंदुस्तान हम मुसलमानों की तारीख है, न किसी से डरते हैं न खौफ खाते हैं, लेकिन वो हमारे आज़म के साथ वो खेलना चाहते हैं, हमारे दिलों के जज्बात के साथ खेलना चाहते हैं। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब जो बरसों से चलती आ रही है, हिंदू मुसलमान भाई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर यहाँ पर त्यौहार मनाते हैं। तो ये लोग को देखा नहीं जा रहा है। हिंदू भाई भी हमारे दुख में शामिल हैं और वो भी तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये अंधा कानून वापस लिया जाए और ये वक्फ बिल को बर्खास्त कर दिया, वक्फ बिल जो लाया गया है बिल उसको बर्खास्त किया जाए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से हमारे इस रैली को कबूल फरमाए और हमारे कानून पर जो नाफिज कर दिया जा रहा है कानून उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाए। वापस लिया जाए ये बिल को 2025 जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसको वापस है। इसमें रिप्रेजेंटेशन को कलेक्टर साहब को भेज देंगे और आपका जो भी इच्छा है वो पूरा हो जाएगा। कंपलसरी कलेक्टर साहब को भेज देंगे। शादनगर फरूखनगर मंडल यहाँ पे आज बिल के खिलाफ खवातीन शादनगर और फरूखनगर की हिस्ट्री में पहली मर्तबा बाहर आ चुकी हैं। इस बात का ये दलील है कि कौम कमज़ोर भी नहीं कम ज़रफ़ भी नहीं। मोदी सरकार इस बात का अंदाज़ा लगाते हुए जो बिल आप लोगों ने दिया है वो बिल मोहब्बत के साथ जैसा ही दिए हैं मोहब्बत के साथ वापस ले लें। उस ज़मीनों को फ़रोख्त करके आप लोग बेवायों की मदद करेंगे, इस बात का लिहाज रखते हुए आपने ये बात कही है। सर गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि बेवा भी डेडलाइन ऑफ डेथ के लिए रहती है, उसका एक दिन ना एक दिन उसकी भी मौत हो जाती। तो मेरा ये ख्याल है वक़्फ़ में सारी ज़मीनों के साथ साथ कब्रिस्तान की भी ज़मीन आती है उसमें, फिर अगर वो बेवा मर जाए तो उसकी वालदा की खबर खो दी जाए या उसके हस्बैंड की खबर खो दी जाए। उसके मरने पर जलाया तो नहीं जाता ना, तो फिर दफनाया जाता। किसकी खबर खोद करके दफनाना, उसकी ज़मीन का अलाटमेंट क्या है इसका भी मुतालबा हमें सरकार दें। और हमारे इदारे, हमारी मस्जिदें और हमारी ईदगाह और हमारी जो भी तुलबा पढ़ने वाली दीन इस्लाम और हमारी मैनाती कम्युनिटी हॉल्स है, हमारे फंक्शन हॉल्स है मैनाती के, इसके लिए आप जो मोहब्बत की भेंट ले लिए हैं हमसे, मोहब्बत की भेंट देने भी उसी सांस और उसी नीयत उसी अमल के साथ वापस आइए। हम दुआ गो है आपके लिए कि ज़रूर आप इंसानियत का नाता रखते हुए वापस हमें ज़रूर वापस देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें दिलवा कर रहेगा। बिल आप वापस लेंगे और हमारी मोहब्बतों का नजराना आपकी ज़ुबानी तहरीर वापस हमें मिलेगा, ये उम्मीद है मोदी सरकार से इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शादनगर और फरूखनगर के नौजवान और हमारी बहनें सब मिलकर एहतजाज करे हैं, एक प्रोटेस्ट करे हैं 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल के खिलाफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बोलना चाहती हूँ, वक्फ नाम वाला चीज़ बच्चे से लेके बूढ़े तक वक्फ बोल तो जानते समझे। अब अमेंडमेंट होने के बाद वक्फ के नाम को बदल दिया गया है। आप बड़े एमआरओ होंगे, एडवोकेट होंगे, जजेस होंगे, वक्फ एक्ट को अपन बोलने में जैसा इतना लंबा कर दिया, वो मेरे को भी नहीं आता आप बोलने के लिए। तो मतलब वक्फ एक्ट नाम को
पूरा जो है ख़त्म करना चाह रहे हैं चीज़ को। वक्फ नाम जो है हर आदमी जानता है इस चीज़ को। और एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ, ये मीठी ईद थी अपनी, बहुत ही खुशियों से अपन मनाने वाली ईद के दिन, ईद के जब ये अमेंडमेंट बिल लाया गया, इसमें कड़वाहट डाल दी गई। हम जो है खुश नहीं हैं, आपके ईद से भी हम खुश नहीं थे, क्योंकि हमको ये बिल पास हुआ जब से मालूम हुआ हमारे दिलों की धड़कन बढ़ गई समझिए, क्योंकि आज ये हुआ कल क्या होने वाला है। बेहतर है हम मुसलमान कौम पूरी एक होने का ये पहला स्टेप है। हम सब जो है इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे। ये आज यहाँ पर वादा करके क्या बोलते हैं, प्रॉमिस करके यहाँ से जाइए, ये मेरा आप सबसे। और जो है और एक बात है, कारवां बनता जाएगा। हम तो शुरू करे हैं 1-2 बच्चों से, 10 बच्चों से शुरू करे हैं। आज अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि जो है MRO ऑफिस से चौरस्ते तक जहाँ हम देना चाह रहे हैं बिल को, वहाँ देने वाले हैं, देने के लोग जो है चौरस्ते तक है। तो इससे ये आगाज़ हमारा शुरू हुआ है, उसका आखिर क्या होने वाला है अब अल्लाह ही जानता, अंजाम क्या होने वाला है देखेंगे। क्योंकि ये मैं एक ही अपील कर रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिक्स, ये सब के खिलाफ झंडे बाजू रखिए। जिसके जो झंडे हैं वो अपने अपने पार्टीज में रहिए, मगर ये जो कौम की बात आ रही, जो अपना प्रॉपर्टीज, अपना हक है, वो हक को छीना जा रहा। जब हक को छीना जा रहा तो सब लोग इत्तेहाद होके, एकजुट होके, सब मिलके इसका अपन प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये मेरी खुशखबरी आएंगी, हम ये जो है इस बात का जो है उम्मीद रखेंगे, क्योंकि जब मीठी ईद कुछ ये ऐसा कड़वापन हुआ तो एक जो है हम दिल में खुशी रखते हैं। विदिन 3 मंथ्स में ये बिल को जो है हम और भी प्रोटेस्ट करेंगे, हमारे फ्यूचर प्लान्स भी बताएंगे आपको क्या होने